Good morning, student. Welcome back in this class. I hope you are healthy and safe at your home. This is the class 9, subject social science. And today we will discuss about chapter number 2 and the topic name is Socialism in Europe and the Russian Revolution, and this is the lecture 7th of history. And in last lecture we have discussed about the Russian Revolution of February Revolution, and the most two revolution were the important in Russia, such as February Revolution, and the main purpose of February Revolution was the fall of the monarchy government from the country. And after that, the most important revolution was the October Revolution 1917. And socialism in Europe means many socialists in 18th-19th century, they were changed the society, and they wanted to society on the basis of socialism, and they provided equal rights to all citizens. So student, let's start, and today we will discuss about the October Revolution, the revolution of October 1917. Firstly, we will discuss about the in last lecture we have discussed about the February Revolution 1917, and after that the most important revolution was October 1917 revolution. And the main purpose of revolution, socialist formed the government in Russia in October 1917. And after that we will discuss about the condition of Russia after October Revolution. And after that we will solve some question. That question I have assigned in previous lecture, and last I will give some question in your homework. So student, let's start. And student, in last lecture we have discussed about the February Revolution, and the main power in the Russia after the Tsar, the main power in the hands of provisional government, and Bolshevik and Soviet member, they formed provisional government to run the country. So after the February Revolution, the condition of Russia was intense conflict grew between the provisional government and Bolshevik. Provisional government formed by a Bolshevik member and the Union members, Union Soviet member, yani ki Petrograd Soviet member and Bolshevik member, they formed a provisional government for run the country. But due to this conflict, Lenin means Vladimir Lenin was the head of the Bolshevik party, and they feared that the provisional government would set up a dictatorship. They feared the provisional government would be dictatorship. And in September he began discussion for an uprising against the government, and in September he wanted to remove the provisional government from the country. So he began discussion with another party, discussion with the Soviet party and Labour party for an uprising against the provisional government. अब बेटा देखिए यहाँ पे जो बोल्शविक और प्रोविजनल गवर्नमेंट के बीच में, बोल्शविक आपको पता है कि इसके हेड थे व्लादिमीर लेनिन. अब फरवरी रेवोल्यूशन के बाद जो पावर थी सारी वो बोल्शविक मेंबर और प्रोविजनल गवर्नमेंट के पास आ गई थी. लेकिन इन दोनों के बीच में क्या हो गया, अंदरूनी यानी कि आंतरिक जो लड़ाई थी वो होगी, स्टार्ट होगी. क्योंकि बोल्शविक ये मानता था कि उसको डर था कि इस वाली पार्टी के जो मेंबर हैं वो क्या है, डिक्टेटरशिप हैं, and they did not discuss with another party. So Vladimir Lenin जो बोल्शविक पार्टी का हेड था, उसको डर था कि जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है वो डिक्टेटरशिप ना हो, यानी वो डिक्टेटर करे, कंट्री को अपने कंट्रोल में कर ले. इसी वजह से सितंबर में उसने क्या कर दिया, डिस्कशन करना स्टार्ट कर दिया कि कंट्री में से प्रोविजनल गवर्नमेंट को किस तरह से रिमूव किया जाए. इसी वजह से उसने क्या कर दिया, लोगों से डिस्कशन करना स्टार्ट कर दिया कि कैसे कंट्री में से प्रोविजनल गवर्नमेंट को रिमूव कर दिया जाए. क्योंकि आफ्टर जार के रिजाइन देने के बाद पार्टी को स्मूथली चलाने के लिए प्रोविजनल गवर्नमेंट को बनाया गया था. ऑन 16 October 1917, Vladimir Lenin united supporter from army. They formed and united supporter from army member
Soviet member and the factory member. And Soviet appointed, and Soviet means Petrograd Soviet appointed a military revolutionary committee, means they all together they formed a military revolutionary committee, and the head of the military revolutionary committee was Leon Trotsky for control the power. उसके बाद बेटा 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने क्या कर दिया, अलग अलग लोगों से सपोर्ट करना लेना स्टार्ट कर दिया, आर्मी मेंबर से, सोवियत से, जो पेट्रोग्राड जो सोवियत यूनियन थी, और फैक्ट्री के मेंबर से, वर्कर से मिलके उसने क्या है यूनाइटेड करी, उनके साथ मीटिंग करी, उनको क्या है एक यूनाइटी यानी कि यूनाइटेड में उनके ग्रुप में बनाया, और वहाँ उन्होंने मिलजुल के एक मिलिट्री रेवोल्यूशन कमेटी बनाई जिसके हेड कौन थे, लियोन ट्रोट्स्की, और जिनका मेन एम था रशिया की पावर को अपने कंट्रोल में लेना। इसलिए उसने क्या है प्रोविजनल गवर्नमेंट को हटाने के लिए सभी पार्टी से सपोर्ट लेना स्टार्ट कर दिया, और उनके एक यूनिटी बनाई ताकि सब लोग उसको क्या करें, सपोर्ट करें, और आगे आने वाले टाइम में कंट्री में से प्रोविजनल गवर्नमेंट को रिमूव कर दिया जाए। आफ्टर दैट बेटा अब द राइजिंग बिगेन ऑन 24 अक्टूबर 1917। अपराइजिंग यानी कि आपस में लड़ाई झगड़ा होना स्टार्ट हो गया, दोनों के बीच में, बोल्शेविक पार्टी और प्रोविजनल गवर्नमेंट के बीच में लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो गया। उसी समय वहाँ जो रशिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे केरेंस्की लेफ्ट द सिटी टू समन ट्रूप्स इन फियर। तो वहाँ के जो रशिया के प्राइम मिनिस्टर थे केरेंस्की, उन्होंने कंट्री को छोड़ दिया, वो कंट्री के बाहर चले गए। एक तो डर के मारे वो चले गए थे बिकॉज दे फियर्ड विद द अपराइजिंग बिगेन इन द कंट्री, एंड ही लेफ्ट द कंट्री, ही लेफ्ट द सिटी टू समन ट्रूप्स इन फियर। बाहर चले गए, दूसरी कंट्री में चले गए ताकि वहाँ से क्या है ट्रूप्स को इकट्ठा करके लाए, ट्रूप्स को ढूंढने के लिए, ट्रूप्स को लाने के लिए वो क्या है दूसरी सिटी में चले गए। इन द इवनिंग लॉयल मिलिट्री मैन ऑफ गवर्नमेंट कैप्चर द बिल्डिंग ऑफ 2 बोल्शेविक न्यूज़पेपर। उसी समय क्या हुआ 24 को ही शाम के टाइम वहाँ पे जो गवर्नमेंट के जो सपोर्टर थे, जो लॉयल थे, द लॉयल पर्सन ऑफ द गवर्नमेंट, उन्होंने दे सीज द पावर, दे कैप्चर्ड, उन्होंने कब्जा कर लिया बोल्शेविक के जो न्यूज़पेपर जो थे, यानी जो वहाँ पे प्रिंट होते थे, उनके खुद के जो न्यूज़पेपर थे बोल्शेविक पार्टी के, उन पे कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया ताकि वो ये जो गवर्नमेंट थी वो ये चाहती थी बोल्शेविक जो पार्टी है वो अपनी गवर्नमेंट ना बना पाए। इसीलिए उन्होंने क्या बोल्शेविक न्यूज़पेपर यानी जहाँ पे प्रिंट होते थे उस बिल्डिंग को अपने कब्जे में ले लिया। दे कैप्चर द बिल्डिंग ऑफ 2 बोल्शेविक न्यूज़पेपर। और इसी वजह से बेटा बाद में प्रो गवर्नमेंट ट्रूप्स वर सेंट टू कैप्चर टेलीफोन एंड टेलीग्राफी ऑफिस एंड प्रोटेस्ट द विंटर पैलेस। और इससे पहले गवर्नमेंट ने भी क्या किया, गवर्नमेंट ने भी अपने गवर्नमेंट ट्रूप्स वर सेंट टू कैप्चर, उन्होंने भी अपनी सेना भेजी, गवर्नमेंट ने भी अपनी क्या करी ट्रूप्स भेजी, यानी कि मैनी ग्रुप्स ऑफ द आर्मी पीपल कैप्चर टेलीफोन टेलीग्राफी ऑफिसर को प्रोटेक्ट करने के लिए, और विंटर पैलेस यानी कि विंटर पैलेस जो था जहाँ पे जार निकोलस का यानी पार्लियामेंट जहाँ पे थी उसको प्रोटेस्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने अपनी ट्रूप्स भेजी। इन रिस्पॉन्स ऑफ दिस, तो इस वजह से बेटा वहाँ जो उनकी कंडीशन की वजह से तो दूसरी पार्टी यानी अपोजिशन पार्टी बोल्शेविक पार्टी ने भी क्या किया, दीज मेजर मिलिट्री रेवोल्यूशन कमेटी ने भी अपने सपोर्टर को ऑर्डर दे दिया टू कैप्चर गवर्नमेंट ऑफिसेस एंड टू अरेस्ट मिनिस्टर, कि गवर्नमेंट ऑफिसेस हैं जो भी बिल्डिंग है उनको क्या कर लो, कैप्चर कर लो। एंड शिप अरोड़ा प्रोटेक्टेड द विंटर प्लेस, जो क्या था, और वहाँ पे भी उन्होंने क्या कर दिया, जहाँ पे शिप अरोड़ा था, अरोरा नाम का एक शिप था, उस पर भी क्या है उन्होंने कब्जा कर लिया था, उस पर भी उन्होंने हमला करना स्टार्ट कर दिया था। क्योंकि जो अरोरा था वो वहाँ पे क्या था, एक शिप का नाम है जो विंटर पैलेस पे था, उस पर भी उस दिन भी वहाँ पे उन पे क्या हो गया, हमला करना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि मिलिट्री वाले यही चाहते थे कि प्रोविजनल गवर्नमेंट भी कंट्री में से क्या कर दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए। आगे बेटा अदर वेसल यानी कि शिप, बड़ी जो शिप होती हैं, बड़े बड़े जो शिप होती हैं, सेल डाउन द रिवर नेवा, और उनको भी क्या है रिवर नेवा के उनको भेजा गया, अलग अलग पॉइंट से भेजा गया, और मिलिट्री को भी रिवर नेवा को पार करके अलग अलग एरिया में भेजा ताकि सारे एरिया पे क्या है कंट्रोल किया जाए। एंड द रेवोल्यूशन एंडेड विद ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत पेट्रोग्राड अप्रूविंग द बोल्शेविक एक्शन।
और बेटा जैसे जैसे क्या हो गया, कंट्रोल होना स्टार्ट हो गया, वैसे वैसे क्या हुआ, उन्होंने क्या हुआ आगे, रेवोल्यूशन एंडेड, बाद में जो रेवोल्यूशन था, जो अक्टूबर रेवोल्यूशन, वो ख़त्म हुआ और सभी जगह क्या कर लिया था उन्होंने, रशियन कांग्रेस सोवियत पेट्रोग्राड अप्रूविंग बोल्शेविक एक्शन, उन्होंने रशियन कांग्रेस ने क्या कर दिया, बोल्शेविक की पार्टी को उन्होंने मान लिया था और उन्हें अप्रूव कर दिया था कि ठीक है कंट्री में अब किसकी बात चलेगी, बोल्शेविक की। देयर वर हैवी फाइटिंग स्पेशली मॉस्को, बट बाय दिसंबर, लेकिन वहाँ पे बहुत बड़ी क्या हुई, लड़ाइयाँ हुई, दोनों तरफ से बहुत बड़ी क्या हुई, लड़ाइयाँ हुई, कि बाद में वहाँ पे रशियन कांग्रेस की मीटिंग भी हुई और वहाँ पे उनको बोल्शेविक पार्टी को क्या दे दिया, अप्रूवल दे दिया, क्योंकि मॉस्को में लड़ाई होने के बाद भी दिसंबर तक आते आते सभी लोगों ने, बोल्शेविक कंट्रोल था मॉस्को पेट्रोग्राड एरिया, लेकिन दिसंबर तक आते आते बोल्शेविक पार्टी ने मोस्टली जो एरिया था मॉस्को और पेट्रोग्राड एरिया तक पूरा कंट्रोल कर लिया था, यानी कंट्री में मोस्टली पार्टी बोल्शेविक पार्टी का कंट्रोल हो गया था। और जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है उन्होंने क्या कर लिया था, उनको सपोर्ट कर दिया था कि ठीक है अब कंट्री में क्या है, आपकी ही पावर चलेगी। तो इस प्रकार फरवरी रेवोल्यूशन, इस बार जो अक्टूबर रेवोल्यूशन का जो मेन एंड था, जो मेन पावर थी वो बोल्शेविक के पास आ गई थी। तो यही जो मेन पावर थी, बोल्शेविक जो सोशलिस्ट को क्या कर रहे, प्रमोट कर रहे थे, और उन्होंने फिर क्या है पूरी कंट्री में अक्टूबर में सारी पावर को अपने कंट्रोल में ले लिया था। तो ये जो सारे जो है प्रोसेस हैं वो सारे कंट्री में से सोशलिस्ट सिस्टम को लेके आना और मोनार्की सिस्टम को हटाना और अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए किए गए थे, क्योंकि यहाँ पे जो पार्टी फॉर्म की गई थी बेटा वो प्रोविजनल गवर्नमेंट और बोल्शेविक ने की थी, लेकिन बाद में उनको डर था कि बोल्शेविक की प्रोविजनल गवर्नमेंट वर ऑटोक्रेटिक, ओके, एंड दे वर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो इसी वजह से उसने सभी पार्टियों को आपस में यूनाइटेड किया, उनको मिलाया और उन्होंने फिर क्या सपोर्ट किया। और बाद में क्या है, उसने भी अपने मिलिट्री मैंस को ऑर्डर दिया कि तुम क्या कर दो, वहाँ पे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे हमला कर दो। और बाद में काफ़ी लॉन्ग रेवोल्यूशन होने के बाद में क्या है, सारी जो जगहों पे क्या कर लिया, बोल्शेविक ने कंट्रोल कर लिया, एंड द बोल्शेविक कंट्रोल द मॉस्को पेट्रोग्राड एरिया। नेक्स्ट बेटा, चेंजेस आफ्टर अक्टूबर। अब पावर अपने हाथ में लेने के बाद क्या क्या चेंजेस हुए, जो कि सब पावर अब किसके पास आ गई थी, बोल्शेविक पार्टी के पास आ गई थी। और बोल्शेविक पार्टी आने के बाद और उनके जो हेड थे वो थे बोल्शेविक, और उन्होंने आपने देखा, उन्हें पहले ही पढ़ा था, उनकी डिमांड 3 डिमांड रखी थी, अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। और जैसे ही बोल्शेविक पार्टी ग्रुप में आई, यानी कि जैसे ही वो पार्टी फॉर्म करी उन्होंने, तो उन्होंने आते ही सबसे पहले जो काम किया था, वो जो काम था उनका सबसे पहले था बोल्शेविक नेशनलाइज द बैंक एंड द इंडस्ट्री नवंबर। सबसे पहले उसने आते ही सभी बैंक को नेशनलाइज द बैंक एंड द ऑल पावर इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड ऑल इंडस्ट्री वर नेशनलाइज्ड इन नवंबर 1970। यानी कि गवर्नमेंट बनते ही बोल्शेविक ने सारे बैंक को क्या कर दिया, गवर्नमेंट के कंट्रोल में कर दिया, सारी इंडस्ट्री को भी क्या कर दिया, गवर्नमेंट के कंट्रोल में कर दिया, नहीं नेशनलाइज कर दिया। And the Bolshevik declared land as social property and allowed peasants to capture lands or noble and church the jar. और Bolshevik declared all land equal distributed in all peasant, and they capture, and peasants they were free to capture the land of noble church and jar। और बोल्शेविक ने ग्रुप में आते ही, पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म करते ही उन्होंने क्या कर दिया, सभी पीजेंट्स को ये ऑर्डर दे दिए, अलाउ कर दिया कि वो क्या है, नोबल्स की लैंड को, चर्च की और जार की लैंड को क्या अपने कंट्रोल में ले सकते हैं। क्योंकि जो बोल्शेविक थे वो भी कंट्री में इक्वालिटी लाना चाहते थे, इसलिए उन्हें सभी को क्या कर दिया, प्रॉपर्टी लेने के लिए सभी को क्या कर दिया, अलाउड कर दिया कि आप उनकी लैंड को अपने कंट्रोल में ले सकते हो। नेक्स्ट बेटा, दे बैंड ऑल टाइटल्स ऑफ एरिस्टोक्रेसी एंड बिग हाउसेज वर पार्टीशन अकॉर्डिंग टू द फैमिली रीड। और उसने क्या कर दिया, जो पुरानी ओल्ड जो टाइटल्स थे, जो एरिस्टोक्रेसी के जो टाइटल थे, जो उनको नाम से जो जाना जाता था, जो भी पोस्ट थे उनको हटा दिया, उन पर बैन कर दिया कि कोई भी अब क्या है कंट्री में छोटा बड़ा ना होगे, सभी इक्वल होंगे और किसी को भी किसी पोस्ट है ना जाने की, सबको इक्वलिटी प्रोवाइड की जाएगी। और जो भी उसने क्या किया, बिग हाउस, जिस भी पर्सन के पास बड़े बड़े घर थे उनको क्या कर दिया, पार्टीशन कर दिया अकॉर्डिंग टू फैमिली, यानी जितनी फैमिली मेंबर को नीड्स होती
थी उसी के अकॉर्डिंग उनको क्या करती है, जगह प्रोवाइड की जाती थी। और जो एक्स्ट्रा जो घर होते थे यानी बड़े बड़े घर को छोटा बना के अलग लोगों में उनकी नीड के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता, क्योंकि उसका हम बोल्शेविक का मेन था कि सभी लोगों को इक्वलिटी प्रोवाइड करना, ताकि कंट्री में कोई भी क्या है रिच और पुअर ना हो के बल्कि सभी इक्वल हो सके। एंड न्यू यूनिफॉर्म वर डिजाइन फॉर द आर्मी, और कंट्री को चेंज कर लेंगे, दे वांटेड टू चेंज द सोसाइटी, सो दे वर डिजाइन फॉर द आर्मी एंड ऑफिशियल, दे डिजाइन न्यू यूनिफॉर्म फॉर द आर्मी एंड सोवियत हेड वाज आल्सो डिजाइन। और वहाँ पे क्या है, जो सोवियत यानी कि जो ग्रुप ऑफ द पीपल थे या वर्कर्स का जो ग्रुप था उनकी यूनियन बनाएगी, तो यूनियन को अपने दूसरे पार्टी से डिफ्रेंशिएट करने के लिए उनके लिए एक अलग सी हैट बनाएगी, ताकि उनको क्या डिफ्रेंशिएट किया जाए। तो कंट्री में अपने ग्रुप को अलग बनाए रखने के लिए उसने बहुत सारे क्या किए थे, चेंज किए थे। वो सोसाइटी को क्या करना चाहता था, चेंज करना चाहता था। तो इसी वजह से वो अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद उसने कंट्री में बहुत बड़े लेवल पे क्या किया, कंट्रोल किया। और पार्टी में आते ही उसने बोल्शेविक पार्टी वाज रीनेम्ड एज अ रशियन कम्युनिस्ट पार्टी, और उसने अपने गवर्नमेंट फॉर्म करते ही बोल्शेविक पार्टी का नाम चेंज करके नाम रख दिया द रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। एंड बोल्शेविक दे वर टोटली अगेंस्ट द प्राइवेट प्रॉपर्टी सिस्टम, और वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के बहुत ज़्यादा अगेंस्ट थे। वो नहीं चाहते थे किसी पर्सन को प्राइवेट प्रॉपर्टी मिले, वो सब में चाहते थे इक्वली प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते थे। इसी वजह से उन्होंने क्या है, लैंड को नोबल्स और चर्च से लेके वर्कर्स और पीजेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, सारी तरह के रेस्ट्रिक्शन को रिमूव कर दिया था, और जो भी नाम थे एरिस्टोक्रेसी के जो नाम थे वो भी चेंज कर दिए थे, और बोल्शेविक पार्टी का नाम भी चेंज करके रशियन कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया था। नेक्स्ट है बेटा, इन नवंबर 1917 बोल्शेविक कंडक्ट द इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बट दे फेल टू गेन मेजोरिटी। अब उसने क्या है, लेकिन नवंबर 1917 में बोल्शेविक ने दे कंडक्ट द इलेक्शन फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बट दे डिड नॉट गेट मेजोरिटी। लेकिन क्या है, वो कौन से असेंबली के इलेक्शन रखे लेकिन उसको किसी ने वोट नहीं दिया, वो मेजोरिटी नहीं ले पाया। इसी वजह से उसकी क्या है, उसको वो पावर में नहीं आ पाया था, यानी उसकी गवर्नमेंट फॉर्म नहीं हो पाई थी। नेक्स्ट है बेटा, इन जनवरी 1917 द असेंबली रिजेक्टेड बोल्शेविक मेजर, और 1917 में असेंबली ने बोल्शेविक के जो रूल रेगुलेशंस को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। और व्लादिमीर लेनिन ने ही असेंबली को क्या कर दिया, डिसमिस कर दिया, कि अगर आप मेरी बात को फॉलो नहीं करते तो उसने असेंबली को क्या कर दिया, डिसमिस कर दिया। और उसका मानना था, ही बिलीव दैट ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत वाज मोर डेमोक्रेटिक देन एन असेंबली इलेक्टेड इन अनसर्टेन कंडीशन। उसका बिलीव था कि जो गवर्नमेंट रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत के द्वारा जो गवर्नमेंट बनाई गई, यानी कि जो गवर्नमेंट रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत के द्वारा जो बनाएगी वो ज़्यादा डेमोक्रेटिक होगी। किससे, कि जो गवर्नमेंट हमने एट ए टाइम बनाई है, क्या अनसर्टेन कंडीशन में जो गवर्नमेंट फॉर्म की जाती है, उससे बेटर जो गवर्नमेंट है वो है रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत। तो उसका मानना यही था। इसी वजह से उसने क्या कहता है, असेंबली को भी डिसमिस कर दिया था, और वो चाहता था कि कंट्री में रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत के ही क्या चले, रूल रेगुलेशन चले। इसी वजह से उसने क्या है, जो असेंबली थी उसको वो क्या कहता था, मानता ही नहीं था। आगे, इन मार्च 1918 द बोल्शेविक एंटर्ड इनटू ट्रीटी विद जर्मनी एट ब्रेस्ट-लिटोव्स्क एंड एंडेड द वॉर विद जर्मनी। अब 1918 में क्या किया, बोल्शेविक ने क्या किया, जर्मनी के साथ एक ट्रीटी करी, एक यानी कि कॉन्ट्रैक्ट, जस्ट लाइक ए कॉन्ट्रैक्ट। और उसने एट ब्रेस्ट-लिटोव्स्क, ये एक एरिया का नाम है जहाँ पे उसने क्या है, वो जर्मनी के साथ वॉर करने के लिए उसने मना कर दिया कि अब वो जर्मनी के साथ वॉर नहीं करेगा। और जर्मनी के साथ उसने क्या एक ट्रीटी करी, कहाँ पे करी, ब्रेस्ट-लिटोव्स्क में। और वहाँ पे उन्होंने ट्रीटी करने के बाद जर्मनी के साथ उसका जो वॉर था वो एंड हो गया था। एंड the Bolshevik become the only party to participate in election of all Russian Congress Soviet, which was the parliament of the country, and they won। कि बाद में जो बोल्शेविक पार्टी था, जो बोल्शेविक थी, वो क्या है, पहली पार्टी बनी पार्लियामेंट में, जिसमें क्या है, इन द इलेक्शन ऑफ ऑल रशियन कांग्रेस में उसने क्या इलेक्शन कंटेस्ट किया पार्लियामेंट के लिए, और वही क्या रही, विन हो गई। यानी कि क्या है, द रशियन
रशियन जो जिसमें क्या है, जिसको क्या है, ये पार्टी जीतने के बाद, ऑल रशियन कांग्रेस पार्टी जीतने के बाद उस कंट्री को क्या है, पार्लियामेंट्री बन जाते हैं। वो क्या बन जाती है, कंट्री विच वाज द पार्लियामेंट ऑफ कंट्री। यानी जो भी कंट्री ऑल रशियन कांग्रेस सोवियत में मेंबर हो जाता है या पार्टी विन कर जाता है, वो उसकी फिर कंट्री को क्या बनाता है, वहाँ पे पार्लियामेंट बनाई जाती है। और वहाँ पे बोल्शेविक ने क्या है, इलेक्शन को जीता और वो क्या है, जो रशिया थी वो क्या बन गई थी, पार्लियामेंट बन, रशिया में क्या बन गया था, पार्लियामेंट बन गई थी। इसी वजह से उसने क्या है, जर्मनी के साथ भी क्या किया था, कांटेक्ट किया था। उसने कांटेक्ट किया था कि जर्मनी युद्ध नहीं होगा, और इसी वजह से उसने क्या है, ऑल रशियन कांग्रेस सोवियत में पार्टिसिपेट किया इलेक्शन में, ताकि वहाँ पे क्या बन सके, कंट्री में पार्लियामेंट बनाया सके। और वही इलेक्शन क्या हो गया, विन कर गया और पार्लियामेंट वहाँ पे बनाई गई। आगे बेटा, Russia became a one-party state and trade union were kept under party control. Those who criticized Bolshevik were punished by secret police, Cheka and later OGPU and NKVD. अब ये क्या थी, अब रूस क्या हो गया, पार्लियामेंट्री सिस्टम में जीतने के बाद अब जो रशिया था उसको क्या उसका नाम दिया, पार्लियामेंट का नाम दे दिया। यानी कि रशिया को क्या है, रशिया में क्या बन गई थी, पार्लियामेंट बन गई थी। एंड रशिया बिकेम ए वन पार्टी स्टेट, और यहाँ पे रशिया में केवल एक ही पार्टी थी, वो थी बोल्शेविक की पार्टी थी। और वहाँ पे ट्रेड यूनियन है या सारी क्वार्टरी पे जो कंट्रोल था वो बोल्शेविक का ही था। और जो भी बोल्शेविक की पार्टी को क्रिटिसाइज करता था या उसके अगेंस्ट जाता था, उसको अपोज करता था, उसको फिर जो रशिया में जो पार्टी थी, जो सीक्रेट पुलिस थी, चेका, उसका नाम था चेका, चेका एज ए सीक्रेट पुलिस इन रशिया, वो क्या करते थे, पनिश करते थे। और बाद में जो चेका को बाद में नाम से जानता, OGPU एंड NKVD, ये भी क्या है, अलग अलग वहाँ पे क्या सीक्रेट पुलिस के नाम रखे गए थे, जहाँ पे क्या है पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, जो क्या है रशिया में क्या है लोगों पे कंट्रोल करने के लिए ये पार्टीज बनाई गई थी। जैसे पहले चेका थी, ये सीक्रेट पुलिस है, फिर OGPU या फिर आई NKVD, जिनका मेन पर्पस था बोल्शेविक पार्टी को प्रमोट करना। अगर कोई भी पर्सन उनके अगेंस्ट करता है तो उसको अरेस्ट कर लिया जाता था। And many young writers and artists opposed the party because it stood for socialism and change. This led to experiment field of arts and architecture October 1917. और बहुत सारे आर्टिस्ट भी क्या हुए, बहुत सारे क्या हो गए, उनकी तरफ आकर्षित हुए। और वो भी क्या चाहते, मैनी यंग पार्टी आर्टिस्ट पोज द पार्टी बिकॉज स्टूड फॉर सोशलिज्म, क्योंकि वो भी किसके लिए अगेंस्ट, किसके लिए हुए थे, सोशलिज्म के थे। और वो भी चाहते कि कंट्री में क्या हो, आर्ट्स और आर्किटेक्चर में क्या हो, काफ़ी सारे चेंज आए। एंड आफ्टर अक्टूबर 1917 मैनी बोल्शेविक, काफ़ी जो पहले जो थे अक्टूबर में क्या है, काफ़ी सारे राइटर्स और आर्टिस्ट ने भी क्या कर दिया, इनके साथ मिलना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उन्होंने भी एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे। वो भी नए नए क्या है एरिया में, डिज़ाइन में, आर्किटेक्चर वाले स्टाइल में क्या है चेंज करना चाहते थे। इसी वजह से उन्होंने क्या कर दिया, इस पार्टी को अपोज किया। एंड आफ्टर 1917 मैनी बोल्शेविक फॉलोअर बिकम डिसइल्यूस्ड मतलब निराश हो गए बाद में, बाय द वे द पार्टी फंक्शन। लेकिन क्या हुआ बेटा, अक्टूबर के एंड में आते आते काफ़ी सारे जो पर्सन थे वो क्या हो गए, उससे नाराज़ हो गए, क्योंकि जिस तरह से बोल्शेविक पार्टी क्या कर रही थी, बाद में क्या है सेंसरशिप आ गई थी। सेंसरशिप आने की वजह से बहुत सारे लोग उनसे परेशान हो गए थे, और वो नहीं चाहते थे कि जिस तरह बोल्शेविक पार्टी कंट्रोल कर रही है वो उनकी पॉलिसी को पसंद नहीं करते थे। तो यहीं से जो बेटा था, ये था अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद क्या क्या सिचुएशन चेंज हुई थी। क्योंकि इसमें क्या है, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या थे, बहुत सारे जो राइटर थे जो थे वो भी क्या है बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए थे, और वो भी क्या चाहते थे, चेंज करना चाहते थे। और इसी वजह से उन्होंने क्या कर दिया, उनके साथ बाद में क्या कर दिया, 1917 में उन्होंने भी क्या कर दिया, अपने आर्किटेक्चर स्टाइल में नए नए एक्सपेरिमेंट करने स्टार्ट कर दिए। Okay student, and today your homework solution. What was the Lenin April thesis? Answer is Lenin gave his April thesis in which he made 3 demands. The war should be brought to an end, means the war should be ended, and the land must be transferred
to the peasants and the bank should be nationalized. According to the Vladimir Lenin, they demanded three demands and it was called April thesis. Which buildings were located on the left bank of River Neva in Petrograd? Answer is on the left bank were the fashionable area, the Winter Palace and official buildings, including the palace where the Duma met. Question number 3. Enlist any three effects of the First World War on the Russian economy. Answer. First, the war affected the industry and the economy was badly hit with cut off supplies and breaking of industrial equipment. Second, by 1916, railway lines began to break down and able-bodied men were called up to the war. This leads to shortage of labor and shutdown of small workshops. And D. Large supplies of grains were sent to feed the army. This leads to scarcity of bread and flour for the people in cities. Question number 4. Who were Soviet and describe their role in the Russian Revolution? You know, Soviet were political organization primarily associated with the Russian Revolution, and Vladimir Lenin was their leader. They, along with the Duma leader, formed the provisional government after the downfall of the Tsar. On 16th October 1917, Lenin persuaded Soviet and Bolshevik party to agree to a socialist seize of power. Question number 5. Describe the main events which lead to the February Revolution in Petrograd. Answer. In February 1917, there was acute shortage of food grains in Russia, which made the life of workers very difficult. Second, parliamentaries opposed the Tsar's desire to dissolve the Duma. On 22nd February, a lockout took place at a factory. This led to a protest and strike against the factory joined by women. This day come to be known as International Women's Day. Demonstrating workers crossed from the factory quarter to the center of the capital, Nevsky Prospect. At this stage, no political party was actively organizing the movement. On 26 February, demonstrators returned on the street, whereas on 27 February, the police headquarters were attacked and damaged. And workers demonstrated on the street, raising slogans about bread, wages, better hours and democracy. So these were the impact of February Revolution. And the cavalry soldier joined the workers and jointly formed a Soviet or council in the same building where the Duma meet. This was the Petrograd Soviet. And on 28th February, a delegation went to see the Tsar, and Tsar resigned the throne on the advice of military commander on 2nd March 1917. Okay student, and all question done in your fair notebook. And today your homework: what new names was given to Bolshevik party? Question number 2.
Who was the Prime Minister of Russia when October Revolution began? Question number 3. What events led to the October Revolution of 1917 in Russia? What changes were brought about by Bolshevik immediately after the October Revolution? And which secret police was formed to punish the one who criticized Bolsheviks? And student, all question done in your fair notebook. Okay, thank you.